Okay, so is everyone seeing the PowerPoint presentation? Yes, sir. Okay, so in the previous lecture, we have studied about the OSI model, how many layers are there in the OSI model, and then we briefly described the each function of the or each services that is provided by the corresponding layers. Okay, we have 7 layers, that is physical, data link, network, transport, session, presentation, and application. ओके ठीक है. Then we have studied about addressing. कि हमारे पास OSI layers में we have 3 types of addressing used. The first one was physical address, which is a data link layer. The second one was uh, network address or logical address that is used on network layer, and the third one is port address, which is used on transport layer आपके पास. ठीक है. So every address have its own domain. So, like physical is from hop to hop, network is from source to destination, and port is from process to process आपके पास. ठीक है, और application to application. ठीक है. So now we are going to study in detail these addresses, that how information is passed from one computer to another computer using these addresses आपके पास. ठीक है. So yes, for delivery of message from one point to another point, addresses are required. ठीक है, आप अपने रियल लाइफ के एग्जांपल्स में भी देख लें. सो इफ यू वांट टू गो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, यू नीड एन एड्रेस आपके पास. ठीक है. तो विदाउट एन एड्रेस आप लोग अपनी अपनी उस जगह पे नहीं पहुंच सकेंगे. ओके. सो देयर आर 4 addresses used in his books, but most of the time you will only see 3 addresses, that is physical, logical, and port addresses. Specific addresses is not that important आपके पास. ठीक है. We will see why it is not important. That is used by some applications like your nickname, जो आप व्हाट्सएप पे इस्तेमाल करते हैं, अपना नाम, या अपने मैसेंजर पे निकनेम इस्तेमाल करते हैं. ठीक है. सो दैट इज नॉट crucial to the delivery of message from source to destination or from one computer to another computer. ठीक है. So by default there are only 3 type of addresses, that they are physical, logical, and port addresses आपके पास. ठीक है. So whenever you search the term that how many addresses are used in TCP/IP or OSI layers, you will always get 3 addresses are used in these 3 type of addresses used in OSI or TCP/IP. ठीक है. तो specific address जो है वो important नहीं है. That is only used in this book आपके पास. ठीक है. Okay. But we will see what is specific address. Okay. So the physical address is at data link layer आपके पास. ठीक है. And they basically it corresponds to physical and data link layer. तो मैंने आपको कहा था कि why are these 2 layers shown with each other, because they depend upon the technology which you are using at the physical layer. अगर आप ईथरनेट इस्तेमाल करते हैं तो उसका फ्रेम साइज डाटा लिंक लेयर पे कुछ और होगा, उसका फिजिकल लेयर पे जो टोपोलॉजी या कॉपर मीडियम होगा वो कुछ और होगा. सिमिलरली इफ यू आर यूजिंग वायरलेस, so your physical medium is wireless, so your frame size will also be corresponding to that wireless medium आपके पास. ठीक है. सो डाटा लिंक लेयर पे फ्रेम साइज का फिर मुख्तलिफ होगा. So these 2 layers basically are defined by the technology which you are using आपके पास. ठीक है. The network layer is same all are the technologies आपके पास. जो भी आप अगर इथरनेट इस्तेमाल करते हैं, जो भी इस्तेमाल करते हैं, the IP is a global phenomena आपके पास. ठीक है. Then you have transport layer port addresses. Port addresses is also used by that devices which uses transport layer. So if I say router, तो router port addresses को use नहीं करता. जाहिर बात है क्यों नहीं करता, because there is no application or no process running on the router आपके पास. ठीक है. router सिर्फ 3 layers तक काम करता है आपके पास. And then there is specific addresses which is defined at application layer आपके पास. ठीक है. So physical address is also known as link address of a node. So when I'm connected to when my computer is connected to a router using an Ethernet cable, so this Ethernet cable which I am connecting to my computer using the interface, आपके पास जो interface है अंदर, इसका अपना एक physical address होता है. Basically this is also known as hardware address आपके पास. ठीक है. So if you are having 2 interfaces in your laptop,
नेमली कौन कौन से, कोई बता सकते हैं? आपके पास दो डिफरेंट इंटरफेसेस है आपके कंप्यूटर में, कौन कौन से? एनीवन? सर एक तो एनआईसी है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। एनआईसी इज अ जेनेरिक टर्म, एनआईसी इज अ जेनेरिक टर्म, ठीक है। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड वो इस जेनेरिक टर्म है। मैं कह रहा हूँ कौन से दो टाइप्स हैं आपके पास आपके कंप्यूटर में? एनीवन? हाउ डू यू कनेक्ट टू द इंटरनेट? आप किस तरह इंटरनेट के साथ कनेक्ट होते हैं? सर जी एक वाईफाई वाईफाई और एक Okay, केबल। good. डायरेक्ट So you have two network interface card in your laptop. One is through Ethernet, जो वायर के थ्रू पे आप कनेक्ट होते हैं, एंड अदर वन इज वाईफाई, जो वायरलेस के थ्रू पे आप कनेक्ट होते हैं। तो इन दोनों का अलग अलग फिजिकल एड्रेस होगा। तो फिजिकल एड्रेस इज नोन एज हार्डवेयर एड्रेस और लिंक एड्रेस। इट इज द एड्रेस ऑफ अ नोड आपके पास, ठीक है। आप जिस तरीके से भी कनेक्टेड है, आपके जो हार्डवेयर जो आप कनेक्टेड है थ्रू नेटवर्क के साथ, उसका अपना एक एड्रेस होगा। सो आप दूसरा लैपटॉप उठाए, उसका अपना एड्रेस होगा। हम लैब में ये पढ़ेंगे भी, ठीक है। आफ्टर दी मिड टर्म हम लैब शुरू करेंगे तो हम उसमें पढ़ेंगे भी कि हम किस तरह उसमें हार्डवेयर एड्रेस वाली चीजें फाइंड करेंगे। द फर्स्ट टू लैब्स आर अबाउट दिस, ठीक है। सो these physical addresses are included in the frame used by the data link layer आपके पास, ठीक है। तो डेटा लिंक लेयर मैंने आपको कहा था कि हॉप टू हॉप डिलीवरी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, एंड डेटा लिंक लेयर यूजेस दी फिजिकल एड्रेस इन दी हेडर ऑफ दी फ्रेम आपके पास, ठीक है। सो इट इज बेसिकली द लोवेस्ट लेवल एड्रेस, लोवेस्ट लेवल, इसके नीचे कोई और एड्रेस नहीं है, ये सबसे लोवेस्ट लेवल का एड्रेस आपके पास, ठीक है। And again, size and format of the address vary depending upon the network. So जो Ethernet है उसका अपना कोई फॉर्मेट होगा हार्डवेयर एड्रेस का, जो फिजिकल एड्रेस है, और जो वायरलेस है उसका अपना कोई फॉर्मेट होगा आपके पास, ठीक है। इट डिपेंड्स अपॉन द हार्डवेयर, इफ यू आर यूजिंग वायर और वायरलेस। अगर आप फाइबर ऑप्टिक इस्तेमाल करते हैं तो इसका कोई और होगा आपके पास, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल, Ethernet uses a 6 byte एड्रेस, दैट इज 48 byte, 48 बिट एड्रेस आपके पास। तो आप जो ईथरनेट इस्तेमाल करते हैं, जो आप अपना केबल लगाते हैं, उसका जो हार्डवेयर एड्रेस होगा आपके कंप्यूटर का, दैट इज 48 बिट आपके पास और 6 बाइट आपके पास, ठीक है। सो दिस 48 बिट एड्रेस इज इम्प्रिंटेड ऑन द नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। इफ बाय सम मींस आपका जो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड है वो खराब हो गया और आप इसको बाहर निकालते हैं कंप्यूटर से और दूसरा लगाते हैं, तो आपका हार्डवेयर एड्रेस चेंज होगा कि नहीं, फिजिकल एड्रेस चेंज होगा कि नहीं? होगा सर जी, चेंज होगा आपके पास, ठीक है। इट डिपेंड्स अपॉन दी नेटवर्क। इसका मतलब है कि ये नेटवर्क इंटरफेस कार्ड का एक एड्रेस होता है आपके पास, ठीक है। सो इट सिमिलरली योर मोबाइल हैज डिफरेंट टाइप ऑफ फिजिकल एड्रेसेस। वन इज फॉर वायरलेस, द अनदर वन इज फॉर ब्लूटूथ आपके पास, ठीक है। ब्लूटूथ के लिए भी हम फिजिकल एड्रेस इस्तेमाल करते हैं, ओके ओके। सो दिस इज एन एग्जाम्पल आपके पास, ठीक है। If you want to see how is the address of the type, the notation of the hardware address, so it is very simple. Write physical address, ठीक है। तो अगर मैं आपको दिखा दूं, so this is basically, आप इसको देख सकते हैं, ये सबको नजर आ रहा है ये वाला पिक्चर? यस सर। ठीक है। ये आपके वायरलेस लैपटॉप में जो वायरलेस कार्ड लगा होता है, ये उसकी एक फोटो है आपके पास, ठीक है। सो समटाइम्स दीज एड्रेसेस आर आल्सो कॉल्ड मैक एड्रेसेस, मीडियम एक्सेस कंट्रोल मैक एड्रेसेस। मैक एड्रेसेस, फिजिकल एड्रेसेस, लिंक एड्रेसेस, हार्डवेयर एड्रेसेस, दीज चारों के चार जो हैं वो एक ही वो है आपके रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो आप देखते हैं WLAN मैक आईडी, तो आप ये देखते हैं ये हेक्साडेसिमल में आपके पास, जब आप इसको बिट्स में कन्वर्ट करेंगे तो यू विल गेट 48 बिट्स आपके पास, ठीक है। और इन अदर वर्ड्स इट इज लाइक दिस थिंग आपके पास, ठीक है। देखें ये फिजिकल एड्रेस, ये हम पढ़ेंगे कि हमारे पास ये किस तरह है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं ये जो फर्स्ट सर्कल है रेड, दिस इज फिजिकल एड्रेस। सो ईच
the hexadecimal is basically 4 बिट आपके पास, ठीक है। सो जो डैश है, डैश आपके पास 8 बिट्स को सेपरेट कर रहा है और 1 बाइट को सेपरेट कर रहा है। तो 1 2 3 4 5 6 देयर इज 6 बाइट्स, तो 6 into 4 48 बिट्स आपके पास हो गए, ठीक है। तो दिस इज बेसिकली हार्डवेयर एड्रेस आपके पास। ओके, सो लेट अस सी कि अगर आपके पास सिर्फ एक लोकल एरिया नेटवर्क है एंड यू आर नॉट कनेक्टेड टू एनी अदर नेटवर्क आपके पास, ठीक है। सो हमारे पास यहाँ पे 4 कंप्यूटर्स हैं। The first one is having an physical address of 10. Just for example purpose हमने यहाँ पे 10 लिया हुआ है, ठीक है। तो in practical it will not be 10, it will be in 48 bits आपके पास, ठीक है। हम यहाँ पे सिर्फ शो करने के लिए वो कर रहे हैं। So you have 10, you have 28, you have 53 and you have 87, and all of these computers are connected to the with each other using bus topology, ठीक है। एंड एट द एंड वी हैव टर्मिनेटर्स हेयर आपके पास, ठीक है। अगर हमारे पास टर्मिनेटर्स नहीं हो यहाँ पे तो हमारे पास सिग्नल जो है वो फिर बाउंस बैक होगा। तो आपका सिग्नल जो है वो टर्मिनेटर्स के पास जब आएगा तो वो इस सिग्नल को एब्जॉर्ब कर देगा। टर्मिनेटर्स आर जस्ट रेजिस्टर्स आपके पास, ठीक है, जो वो आपके पास सिग्नल को एब्जॉर्ब कर देता है आपके पास। यू विल स्टडी दैट इन योर माइक्रोवेव इंजीनियरिंग इन 7th सेमेस्टर कि किस तरह हम सिग्नल को टर्मिनेट करते हैं एट द एंड ऑफ द लाइन आपके पास, ट्रांसमिशन लाइन आपके पास, ठीक है। ओके, सो the sender wants to send some data to this receiver which has 87. So आपके पास क्या करेगा, the data is coming from the network layer. So when the data is reached at the data link layer, the data link layer will append a header and a trailer with it आपके पास to make it a frame आपके पास, ठीक है। तो ये हमारे पास एक फ्रेम बन गया है। फ्रेम में आप देख सकते हैं कि फ्रेम में सबसे पहले जो एड्रेस है हेडर में, दैट इज डेस्टिनेशन एड्रेस। अब ये मुझसे ना पूछे कि ये 87 इसको किस तरह पता लगा है कि जो मैं भेजूंगा वो 87 है। दैट इज योर कंप्यूटर नेटवर्क कोर्स आपके पास, ठीक है। सो इन करंट सिनेरियो जस्ट एज्यूम दैट एवरी अदर कंप्यूटर बेसिकली नोज एवरी अदर कंप्यूटर्स हार्डवेयर एड्रेस आपके पास। क्लियर? यस सर। ठीक है। सो कैन एनीबॉडी टेल मी, वैसे आपकी कॉमन सेंस चेक करने के लिए मैं पूछ रहा हूँ कि पता किस तरह लगेगा? एक बंदे का एड्रेस आपको नहीं पता तो आप किस तरह उसका पता लगाएंगे? कभी कभी सर उसकी शक्ल से लगता है कि ये इसे लाके का होगा। अच्छा, तो क्या इस कंप्यूटर के पास आंखें जो इसकी शक्ल दूसरे की शक्ल को देखेगा? कंप्यूटर के पास आंखें? क्या ऐसा कुछ किया होगा ना प्रोग्रामिंग में, एक दूसरे को पहचानने में वो आसानी होगी सर। तो क्या किया होगा? कॉमन सेंस आपको क्या कहता है? लेट से मैं आपके क्लास में एक बंदा छोड़ दूं और उसके मैंने आंखें बांधी हुई हैं, ठीक है, तो वो आपके क्लास में आएगा और वो कहेगा कि यार मुझे किसी का नाम नहीं पता, सब मुझे अपना नाम बताए, तो वो क्या करेगा जब क्लास के अंदर आएगा और उसके आंखों पे पट्टी बंधी हुई है? या चले पट्टी भी नहीं बंधी हुई, वो पहला बंदा है, ठीक है, जब वो क्लास में आएगा वो नया बंदा है, तो वो सबको कैसे पहचानेगा? पूछ के he will come to the class and shout that I am a new person here, my name is this, please send me your names. बात खत्म। Yes sir. Clear? So when all of the computers are connected with each other, one of the computer will, जिस कंप्यूटर को कुछ नहीं पता वो शाउट करेगा, इसका मतलब है कि वो सबको मैसेज भेजेगा, ब्रॉडकास्ट करेगा कि I am हार्डवेयर एड्रेस नंबर 87, प्लीज सेंड मी योर हार्डवेयर एड्रेस। तो जब सबके पास ये पैकेट जाएगा तो सबको पता है कि यार एक कंप्यूटर है जिसका नंबर है 87, वो मुझसे मांग रहा है, तो वो उसको वो कर देगा आपके पास। ये क्या है, अपने जो हार्डवेयर एड्रेस है वो सब इसको भेजना शुरू कर देंगे, तो वो अपने पास लिखना शुरू कर देगा कि ये बंदा है, ये बंदा है, ये बंदा, ये बंदा कनेक्टेड है मेरे पास। क्लियर? ठीक है, वी विल स्टडी दैट इन कंप्यूटर नेट, ठीक है सर, हाउ टू नो, बट व्हेनेवर यू डोंट नो ईच अदर यू जस्ट से हेलो टू ईच अदर। जब आप हेलो करते हैं तो आप एक दूसरे के साथ इंफॉर्मेशन चेंज करते हैं, ठीक, एक्सचेंज करते हैं। ओके, यस सर। सो ठीक है, so the destination address is 87 and the source address is 10. So this frame will be transmitted to the physical layer और physical layer इसको actual bits में transmit करेगा on the bus topology, on the bus cable आपके पास, ठीक है। तो ये जो आपके पास जो frame होगा, it will travel in both direction. So when it travel in this direction which is your left one,
इट विल बी टर्मिनेटेड बाय द लाइन, क्योंकि इस तरफ तो कुछ भी नहीं है, टर्मिनेटर लगा हुआ है, ठीक है, बट इन द राइट डायरेक्शन इट विल ट्रेवल, और सबसे पहले ये 28 के पास जाएगा। सिमिलरली इट विल ट्रेवल टू 53 एंड सिमिलरली इट विल ट्रेवल टू 87। तो ये इन तीनों के पास जाएगा। बट जब ये 28 के पास जाएगा तो 28 विल डीकैप्सुलेट द पैकेट। डीकैप्सुलेट मतलब है कि वो डेटा लिंक लेयर पे पैकेट के हेडर, फ्रेम के हेडर को देखेगा। जब हेडर को देखेगा उसमें डेस्टिनेशन एड्रेस क्या है? 87, और इसका अपना एड्रेस 28 है, तो या इस पैकेट को एक्सेप्ट करेगा या डिस्कार्ड करेगा? डिस्कार्ड करेगा। डिस्कार्ड करेगा, तो इट विल डिस्कार्ड इट आपके पास, ठीक है। इसी तरह 53 जो है वो भी इसको डिस्कार्ड करेगा, बट द रिसीवर विच इज हैविंग 87 will not discard it. It will process it and remove the header and trailer from the data, and the data will be sent to the network layer आपके पास। Clear? Yes, sir. That is how Yes. hop to hop communication is done by the physical address आप लोग के पास। Clear? Any की वजह से जी हमारी जी आवाज जी सर, ये जरा दोबारा रिपीट करें, इंटरनेट की वजह से ये आवाज कट गई थी दरमियान में। अच्छा ठीक है, ये आपको मर्डर रिकॉर्डिंग में मिल भी जाएगा, ठीक है। ओके, सो कहाँ से रिपीट करूं, पहले ये तो बताएं। सर, ये सेंडर से रिसीवर तक की जर्नी है, किस तरह ओके, जब सेंडर से फ्रेम आपके पास आएगा ऑन दी बस टोपोलॉजी आपके पास, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इट विल बी रिसीव्ड बाय 28, देन 53, देन 87। 28 जब इसको रिसीव करेगा, इट विल see into the header of the data link layer, then it will see the destination address as 87 आपके पास। so 28 जो है वो 87 को एक्सेप्ट करेगा या डिस्कार्ड करेगा? डिस्कार्ड करेगा, बिकॉज दिस फ्रेम इज नॉट इंटेंडेड फॉर 28 आपके पास, ठीक है। सिमिलरली 53 जो है वो भी जब इसमें डेस्टिनेशन एड्रेस 87 को देखेगा तो वो भी इसको डिस्कार्ड करेगा। एंड एट द एंड जब रिसीवर इसको रिसीव करेगा इस फ्रेम को, तो वो इधर डेस्टिनेशन एड्रेस को देखेगा, इट इज 87, यस इट इज फॉर मी, सो रिमूव दिस हेडर, रिमूव दिस ट्रेलर आफ्टर प्रोसेसिंग, और डेटा को नेटवर्क लेयर की तरफ ऊपर फॉरवर्ड कर दो, ठीक है। एंड देन इट इज टू ट्रांसपोर्ट लेयर एंड देन एप्लीकेशन लेयर आपके पास, ठीक है। ये हमने फ्रॉम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक फ्रेम को डिलीवर कर दिया है। क्लियर? हॉप टू हॉप आपके पास। क्लियर सर? तो एक्सक्यूज मी सर। जी जी सर, तो ये 28 और 53 जो सोर्सेज लगे सर, तो इस फिर इसका फायदा क्या हुआ सर, ये जो डेटा एक्सट्रैक्ट नहीं करते? डेटा सर, तो हम वो नहीं, सर डायरेक्ट हम क्यों नहीं करते, डायरेक्ट 87 को वो ये तो सर एग्जांपल ले यार, ये जो मैंने फर्स्ट लेक्चर में टोपोलॉजीज आपको पढ़ाई थी, तो ये इस टोपोलॉजी का डिसएडवांटेज है ना आपके पास। आप इधर क्या लगाएंगे? इधर आप एक पुलिस खड़ा करेंगे कि यार 28 की तरफ ना जाने दे। What will you do? This is the disadvantage of this topology. यस सर, वो सब की तरफ जाएगा। यस सर, वो सब की तरफ जाएगा, because all of the computers are sharing the same medium. When CR is telling something to one person और वो तेज बोल रहा है, तो वो बाकी सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे? क्लियर? तो फिर आप कहते हैं कि यार जरा साइड पे हो, जो प्राइवेसी कर दो, तो वो टोपोलॉजी की डिसएडवांटेज है आपके पास। सो दिस इज द डिसएडवांटेज ऑफ टोपोलॉजी आपके पास, क्योंकि टोपोलॉजी में सारे एक साथ कनेक्टेड है और सेम ही मीडियम को शेयर कर रहे हैं आपके पास, ठीक है। यस सर, थैंक यू सर। वो इसी तरह है कि आपके एक हॉप आएगा जी, इसमें एक हॉप आएगा सर। हाँ, बेसिकली आपके पास फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन इज वन हॉप आपके पास। क्लियर? ये हम लोकल एरिया नेटवर्क पे बेसिकली फ्रॉम सोर्स नहीं करेंगे सर। नहीं, ये हॉप नहीं होगा आपके पास, ये हॉप नहीं होगा। दैट इज द डिसएडवांटेज ऑफ योर टोपोलॉजी आपके पास। क्लियर? यस सर। देखें, हॉप पर मैं आपको समझा भी दूंगा, जब हम कंप्यूटर नेटवर्क में जाएंगे मैं आपको हॉप समझा दूंगा, बट इन लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर जो आप करते हैं वो एक हॉप में होता है हमेशा, ठीक है। तो ये एक हॉप है आपके पास। ये तो टोपोलॉजी की डिसएडवांटेज है कि वो सारों को जा रहा है आपके पास। क्लियर? जब हम स्टार टोपोलॉजी लगाएंगे तो वो हॉप ही होगा आपके पास। क्लियर? यस सर। ओके, सो
This is basically the representation of the local area network using a 48-bit physical address आपके पास, ठीक है. So it is mostly written as 12 hexadecimal digits, but for computer it is again 48 bits आपके पास, ठीक है. वो hexadecimal को नहीं समझता, वो 48 bit को ही समझता है आपके पास, ठीक है. But for your ease, representation is done in the hexadecimal. So every 2 hexadecimal digit is basically a byte, and it is separated by a colon आपके पास, ठीक है. So 07 is basically 1 byte, 01 is 1 byte, so there are 6 bytes here, and 6 into 8 आपके पास is 48, 6 into 4 sorry, ठीक है. ओके, डबल है तो 48 हो जाएगा आपके पास. क्लियर? इसमें कोई मसला तो नहीं है. 6 into 8 is 48. क्लियर? Yes, Yes, sir. Okay. So now the next one is logical address. So when you are moving from one network to the another network, ये याद रखें कि जब आप एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क की तरफ जा रहे हैं तो then you need a logical address, ठीक है. So if I am just using physical address और मैं आपके स्ट्रीट में आपको कहूँ कि go to house number 4 और मैं आपको कोई इंफॉर्मेशन और ना दूं और मैं आपको कहूँ कि अब बस आप अपने लोकल एरिया नेटवर्क में हाउस नंबर 4 की तरफ जाएं, तो आप अपने फिजिकल स्ट्रीट जो है उसी में जाएंगे. बट इफ आई से कि हाउस नंबर 4 और मैं आपके साथ ये भी कहूं कि दूसरा स्ट्रीट, तो जो दूसरा स्ट्रीट है दैट इज बेसिकली योर लॉजिकल एड्रेस आपके पास. क्लियर? सो व्हेन यू आर मूविंग फ्रॉम वन नेटवर्क टू अनदर नेटवर्क यू नीड अ लॉजिकल एड्रेस आपके पास. क्लियर? Yes, sir. ठीक है. सो नेसेसरी Yes, sir. फॉर यूनिवर्सल कम्युनिकेशन, Yes. ये याद रखें कि लॉजिकल एड्रेस इज नेसेसरी फॉर यूनिवर्सल कम्युनिकेशन आपके पास, ठीक है. So independent of underlying physical networks, it does not depend upon the physical network which you are using. If you are using wireless, if you are using wired, if you are using anything, it does not depend upon this technology आपके पास, ठीक है. It is same for all of the networks आपके पास. A logical address in the internet is currently a 32-bit address that can uniquely define a host connected to the internet. And this 32-bit address must be unique throughout the internet आपके पास. इसका मतलब यह है कि अगर मैं एक यहाँ पे आईपी एड्रेस इस्तेमाल कर रहा हूँ तो दुनिया में कोई और बंदा इस आईपी एड्रेस को इस्तेमाल नहीं कर सकता. नहीं कर सकता. No two publicly addressed and visible host can have the same IP address आपके पास, ठीक है. It is just like that. You can't have two Pakistan in the whole world आपके पास. Clear? Clear? Yes, sir. Clear. Okay. So figure shows, now this is a complete diagram how we are going to, कि हम किस तरह वो करते हैं, ठीक है. लॉजिकल एड्रेस और उसको किस तरह इस्तेमाल करते हैं फिजिकल एड्रेस को. सो दिस इज बेसिकली अ पार्ट ऑफ एन इंटरनेट विद 2 राउटर्स कनेक्टिंग 3 लेन्स. दिस इज अ पार्ट ऑफ द इंटरनेट आपके पास, ठीक है. सो हमारे पास एक नेटवर्क ये है आपके पास, ठीक है. लैन नंबर 1 यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है. दिस इज लैन नंबर 2 एंड दिस इज लैन नंबर 3 आपके पास. सो दीज आर 3 लेन्स which are connected to each other with the help of 2 routers आपके पास, ठीक है. और ये राउटर जो है वो और नेटवर्क के साथ भी कनेक्टेड है, बट वी हैव नॉट शोन इट हियर आपके पास, ठीक है. सो दिस इज अ फ्रैक्शन ऑफ द इंटरनेट आपके पास, ठीक है, अ पार्ट ऑफ द इंटरनेट. सो in this case each computer is connected to only one link and therefore has only one pair of addresses आपके पास, ठीक है. तो हमारे पास जो कंप्यूटर है वो वन लिंक के साथ कनेक्टेड है और उसके पास एक पेयर ऑफ एड्रेसेस आपके पास. क्लियर? So each router however is connected to 3 networks. तो आपका जो कंप्यूटर है वो एक ही लिंक के साथ कनेक्टेड है. आप देख रहे हैं कि इस राउटर के साथ ये कंप्यूटर कनेक्टेड है, ठीक है. दिस कंप्यूटर A is connected with this router F आपके पास, बट आपका जो राउटर है वो एक टाइम में 3 नेटवर्क्स के साथ कनेक्टेड है. सो दैट इज व्हाई राउटर इज नोन एज अ मल्टी होम डिवाइस आपके पास, ठीक है. राउटर की मिसाल आपके चौक की तरह है. जिस तरह आप रास्ते में जाते हैं और आपके सामने चौक आता है, तो चौक बेसिकली डिफरेंट रास्तों को आपस में क्या करता है, कनेक्ट करता है. क्लियर? ओके.
So we are going to send a data from A to P. तो याद रखें कि this is a computer having a logical address of A and a physical address of 10 आपके पास. Clear? So in the internet, बल्कि every computer जो आपके पास जहां पे भी होगा, every mobile phone, it is having two type of addresses when it is connected to the internet, a network. One is its logical address and one is its what? Physical address. So they make a pair आपके पास. Clear? Yes, sir. Clear. Yes, sir. So this is A. A is the logical address of this sender and 10 is the physical address of this sender. Clear? Similarly, this is your computer P. P is the logical address and 95 is the physical address आपके पास. Similarly, this is your router having 3 interfaces. Routers के जब एक से ज्यादा पोर्ट्स होते हैं, आपके कंप्यूटर में सिर्फ एक पोर्ट होता है आपके पास और आपके राउटर्स में 3 पोर्ट्स होते हैं आपके पास, 4-5 डिपेंडिंग अपॉन द राउटर्स. ठीक है. So this router is having this interface with a logical address of F and a physical address of 20, with the logical address of T and a physical address of 99, with the logical address of X and a physical address of 44. ये मैंने आपको बताया था कि हार्डवेयर जो फिजिकल एड्रेस होगा वो हर एक इंटरफेस, हर एक लिंक का होगा. आपके कंप्यूटर में 4 ईथरनेट पोर्ट्स लगे हैं तो आपके 4 फिजिकल एड्रेसेस होंगे. क्लियर? तो इस राउटर में 3 पोर्ट्स लगे हुए हैं, 3 इंटरफेसेस हैं आपके पास, 3 हार्डवेयर एड्रेसेस होंगे इसके. सिमिलरली दिस इज अ राउटर हैविंग 3 डिफरेंट पोर्ट्स एंड 3 डिफरेंट लॉजिकल एड्रेस एंड 3 डिफरेंट फिजिकल एड्रेस आपके पास. ठीक है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल A wants to send some data to P आपके पास. Clear? Now assume again that A knows about P, like you know the google.com. आप google.com लिखते हैं तो आप सिर्फ ये लिखते हैं google.com, फिर आपका कंप्यूटर खुद डिसाइड करता है कि मैंने इसको किस तरह आगे फॉरवर्ड करना है. राउटर्स इसको डिसाइड करते हैं. ठीक है. So every router knows where P is आपके पास. Clear? Yes, sir. ठीक है. अब मुझे ये बताएं, कॉमन सेंस क्वेश्चन अगेन, हाउ डज अ राउटर नो कि वेयर दिस अदर लोकेशन, ये P, इस राउटर 1 को किस तरह पता लग गया कि यहाँ पे P लगा हुआ है इस राउटर के साथ? IP एड्रेस किस तरह? IP एड्रेस शुरू में हम नेटवर्क इंफॉर्मेशन डिस्ट्रीब्यूट करते हैं. दिस इज नोन एज राउटिंग टेबल बिल्डअप एंड इट इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट प्रोसेस. कॉम्प्लेक्स तो मैं नहीं कहूंगा लेकिन इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, क्योंकि आपके पास जो राउटर्स होते हैं जब आप उसको कनेक्ट करते हैं, ऑन करते हैं, तो सबसे पहले वो अपने नेबरहुड की इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं. जब वो इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं तो फिर वो इस इंफॉर्मेशन को अपने पड़ोसी राउटर के साथ शेयर करते हैं. लाइक दिस कि आपको अपने पड़ोसी का पता है, लेकिन आपके पड़ोसी का पड़ोसी कौन है ये आपको कौन बताता है? आपका पड़ोसी. यू वेरी गुड. ठीक है. तो जो आपका पड़ोसी, आपका नेबर है, वो आपको बताता है कि यार मेरे साथ उस तरफ ये बंदा रह रहा है, तो आपको पता लग जाता है कि अगर मैंने उसको कांटेक्ट करना है तो इस पड़ोसी को मैंने कांटेक्ट करना है. क्लियर? तो शुरू में ये राउटर्स ये सारे काम करते हैं आपके पास. ठीक है. सो ये याद रखें कि इन द इंटरनेट देयर इज नॉट ओनली डेटा ट्रेवलिंग आपके पास, देयर इज अदर इंफॉर्मेशन आल्सो ट्रेवलिंग व्हिच आई एम टेलिंग यू कि एक आप शेयर करते हैं कि यार मेरे साथ ये कनेक्टेड है, मेरे साथ ये कनेक्टेड है, और ये सारे इंफॉर्मेशन एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, तब जाके आपको पूरे इंटरनेट का पता लगता है कि ये बंदा कहां पे है, ये बंदा कहां पे है और ये बंदा कहां पे है. क्लियर? यस सर. ठीक है सर. ओके. सर राउटर में मेमोरी लगी हुई होती है जिसमें यस, राउटर में मेमोरी लगी होती है एंड राउटर इज अ वेरी एक्सपेंसिव प्रोडक्ट. ये जो आपके घरों में राउटर लगे हैं, दिस इज अ होम यूज राउटर. ठीक है. ये तो आपको 1500-2000 रुपए में मिल जाता है, बट आपके जो उधर लगे हुए हैं इन दी ये क्या हॉस्टल में सर, कैंपस में, यूईटी में लगे हुए, हॉस्टल्स में लगे हुए, एक राउटर कम से कम 4.5 लाख 5 लाख रुपए का है कम से कम आपके पास. ठीक है. एंड आई हैव सीन राउटर्स हैविंग 40 लाख 30 लाख प्राइसेस आपके पास. क्लियर? जो पीटीसीएल के अंदर लगे होते हैं, दैट इज वेरी एक्सपेंसिव आपके पास. जी सर, इसके थ्रू हम वो अपना पर्सनल डाटा शेयर कर सकते हैं 2 कंप्यूटर्स के अंदर? ये आम जाहिर बात है, क्यों नहीं कर सकते.
आप एक बंदा अमेरिका में बैठा हो और एक बंदा यहाँ पे बैठा हो, तो आप एक दूसरे के साथ इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं ना? नहीं सर, अगर हम इंटरनेट से कनेक्ट ना करें और अपने घर में 2 कंप्यूटर के साथ उससे कनेक्ट करें। हाँ, क्यों नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते? यू आर मेकिंग अ प्राइवेट नेटवर्क, ये भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है? आप एक कंप्यूटर लें और एक दूसरा कंप्यूटर लें और एक इंटरनेट केबल लें और एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर लें, बस बात खत्म। कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते? सर तो आपका उसके लिए हमें कोई अपना अलग सा आईडी की जरूरत नहीं होगी? कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये फिर हम कंप्यूटर नेटवर्क्स में पढ़ेंगे कि आप एक खास किस्म का एड्रेस इस्तेमाल करते हैं। 192.168.1.1 आपने देखा होगा हर जगह पे, आप देखते हैं 192.168 हर जगह पे इस्तेमाल होता है, ठीक है? तो वो हमने बनाई Yes, sir. इसी पर्पस के लिए, सर ठीक है? वो हम फिर कंप्यूटर नेटवर्क्स में पढ़ेंगे कि वो आप घरों में हर जगह इस्तेमाल कर सकते हैं 192.168, ठीक है? वो फिर हम पढ़ेंगे, ठीक है सर। ठीक है? ओके, सो A is the logical address and 10 is the physical address आपके पास, ठीक है? So data is अपर लेयर से आपके पास डेटा आ गया, ठीक है? और नेटवर्क लेयर जो है उसने हेडर में क्या ऐड करना है? लॉजिकल एड्रेसेस ऐड करने हैं। ये लॉजिकल एड्रेसेस कौन बताएगा? अपर लेयर्स बताएंगे इसको। Whenever you type google.com to google.com is an IP address basically, ठीक है? google.com कंप्यूटर को समझ नहीं आता। Whenever you type it, your computer changes it to IP address, logical address आपके पास, ठीक है? सो नेटवर्क लेयर जो है जिस तरह डेटा लिंक लेयर डेस्टिनेशन एड्रेस को वो करता है, मतलब फ्रेम में लगाता है, नेटवर्क लेयर जो है वो पैकेट में शुरू में सोर्स एड्रेस और फिर डेस्टिनेशन लॉजिकल एड्रेस लगाता है। क्लियर? यस सर। और पी यहाँ पे लग गया। नाउ दिस ए पी एंड डेटा इज फॉरवर्डेड टू दी डेटा लिंक लेयर आपके पास। जब ये डेटा लिंक लेयर के पास आएगा, डेटा लिंक लेयर सबसे पहले चेक करेगा। अब यहाँ पे एक मसला है, ठीक है? वो इन बुक में इन्होंने नहीं बताया, बट दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू डिस्कस आपके पास, ठीक है? सो यहाँ पे नेटवर्क लेयर जो है, जब आप उसको पी बताते हैं तो वो सबसे पहले पी को अपने इर्द गिर्द चेक करता है अपने राउटिंग टेबल में। मैंने आपको बताया था कि शुरू में जब कंप्यूटर कनेक्ट होते हैं तो वो एक दूसरे के साथ इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं। तो जब आप कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो जो लोकल एड्रेसेस होंगे, आपके आईपी एड्रेसेस होंगे जो आपके घर में सारे कनेक्टेड है, तो आप एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे कि आई एम 192.168.1.5, आई एम 1.4, आई एम 1.4, आई एम 1.3, आई एम 1.2, ठीक है? जब आप लोग यहाँ पे पी डालते हैं तो योर नेटवर्क लेयर बेसिकली सर्चेस इन इट्स राउटिंग टेबल कि क्या ये मेरे पास डायरेक्टली है कि नहीं है। तो क्या पी इस लेन नंबर 1 में मौजूद है? नहीं मौजूद, ठीक है? तो नेटवर्क लेयर ये डिसाइड करेगा कि आई नीड टू सेंड इट टू हुम। जब एक बंदा आपके क्लास में नहीं होगा तो आप क्या करते हैं? दूसरी क्लास में देखते हैं, दूसरे क्लास से बाहर निकलते हैं, ठीक है? दरवाजे की तरफ जाते हैं। सो दिस राउटर इज बेसिकली योर गेटवे टू द अदर नेटवर्क्स आपके पास। ये जो A10 है ये इन बाकी नेटवर्क के साथ किसके थ्रू कनेक्टेड है? इस राउटर के थ्रू, राउटर के थ्रू, ठीक है? तो ये नेटवर्क लेयर यही पे डिसाइड करता है कि ये पी तो मेरे पास मौजूद नहीं है, लिहाजा मैंने इसको राउटर की तरफ सेंड करना है, ठीक है? तो वो डेटा लिंक लेयर को कहता है कि इसको राउटर की तरफ सेंड कर दो। तो डेटा लिंक लेयर जो है वो राउटर का कौन सा एड्रेस निकालता है? लॉजिकल, फिजिकल, लॉजिकल एड्रेस, फिजिकल। क्लियर? ये देखें, मैंने आपको शुरू में कोरिया का एग्जांपल दिया था। इफ आई एम राइटिंग हेयर कराची, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे देखूंगा कि कराची मेरे पास नहीं है। तो जब कराची नहीं है मैंने डिसाइड कर लिया है, तो ना नेक्स्ट फिजिकल एड्रेस इज व्हाट? टीसीएस का ऑफिस। मैं जाऊंगा टीसीएस ऑफिस में। क्लियर? तो उस एड्रेस पे मैंने डिसाइड किया कि मैं किस तरफ जाऊंगा। तो आपने इस पी पे डिसाइड किया है कि मैं किस तरफ इस फ्रेम को सेंड करूंगा। सो आई नीड टू सेंड दिस फ्रेम टू 20। यहाँ पे 20 ये है। क्लियर? एक्सक्यूज मी सर। जी सर आप ये लिंक लेयर्स का जिक्र करते हैं ना,
ये मुझे एक कंफ्यूजन है सर, ये जो लेयर्स आप बताते हैं सर, ये प्रोग्राम्स होते हैं या फिर कोई हम इमेजिनरी कुछ सपोज करते हैं, ये क्या? तो आपने पिछला लेक्चर सुना है? यस सर, वो सुना है मैंने, लेकिन मैं लास्ट में क्वेश्चन पूछ रहा था, लेकिन फिर अच्छा, कोई और स्टूडेंट इसको बता सकता है कि ये कोई इमेजिनरी होता है? इमेजिनरी होता है सर, ये आपने बताया था, ये कोई दीज आर इमेजिनरी लेयर्स आपके पास, ठीक है। हमने टास्क को डिवाइड कर दिया है, सिंपल। ये जो नेटवर्क लेयर अभी डिसाइड कर रहे हैं कि पी मेरे पास नहीं है, दिस इज अ टास्क ऑफ नेटवर्क लेयर आपके पास। वो फिर अगले लेयर को, अगले प्रोग्राम को, या अगले जो भी है, ठीक है, प्रोग्राम्स ही होते हैं आपके पास, सॉफ्टवेयर ही है, अगले उसको वो करता है कि आप अभी इसको इधर भेजें क्योंकि ये मेरे पास नहीं है। तो ठीक है, ये इमेजिनरी है आपके पास, हमने लेयर सिर्फ अपने आसानी के समझने के लिए वो किए, ठीक है। ओके सर, ये इमेजिनरी नहीं है कि यहाँ पे ये पैकेट बन गया और जरा लेफ्ट पे आ जाए तो अब ये फ्रेम बन गया, इस तरह नहीं है। नहीं, एट द एंड ये सारे सॉफ्टवेयर ही हैं जो एक दूसरे के साथ मिलकर काम कर रहे हैं आपके पास। क्लियर? ओके सर, ठीक है। सो पी आपके पास नहीं है, तो जब पी आपके पास नहीं है, सॉरी यार, व्हेन पी इज नॉट विद यू, तो आपने डिसाइड कर लिया कि पी तो मेरे पास नहीं है, सो आई डोंट नो अबाउट पी। सो इस लेन 1 में तो पी नहीं है, बिकॉज आई नो एवरीवन व्हिच इज कनेक्टेड टू दिस लेन 1, सो आई शुड फॉरवर्ड दिस डेटा टू दिस राउटर। मे बी उसको पता हो कि पी कहां पे, ठीक है। सो आई शुड राइट द फिजिकल एड्रेस ऑफ द राउटर हेयर आपके पास। क्लियर? तो आपने यहां पे इस राउटर को इसको फॉरवर्ड कर दिया, तो आपके राउटर के पास ये डेटा आ गया, फ्रेम आ गया उसके पास। क्लियर? राउटर सबसे पहले क्या करेगा? राउटर विल चेक द फ्रेम, राउटर विल चेक द डेस्टिनेशन physical address. The destination physical address is what? 20. Yes, I am 20. ठीक है, I am 20. Remove this header and trailer and forward this data with this A and P to the which layer? Network layer. राउटर अपने नेटवर्क लेयर को ये फॉरवर्ड कर देगा। क्लियर? यस सर। ठीक है। नाउ राउटर इसके साथ क्या करेगा? इट विल चेक P इन इट्स राउटिंग टेबल। अगेन P वो चेक करेगा और उसके पास एक एंट्री आई है कि यस P इज कनेक्टेड टू राउटर नंबर 2 आपके पास। I told you that assume that every router knows कि who is connected to which router आपके पास। क्लियर? यस सर। क्लियर। ठीक है। सो ओके, तो P मेरे पास नहीं है, सो आई नीड टू अगेन कंसल्ट माय राउटिंग टेबल आपके पास। क्लियर? सो राउटिंग टेबल में मेरे पास आया कि यस P इज कनेक्टेड टू राउटर 2 आपके पास, सो आई नीड टू फॉरवर्ड दिस डेटा टू वेयर नाउ? राउटर नंबर 2। राउटर नंबर 2। ठीक है, P पे मैंने डिसीजन लिया, सो नाउ अगेन डेटा A P, so data A and P, and now I need to again make a frame. I need to change the physical address now. So which physical address should I? Router number 2 router number 2 address which is connected to router 1 is 33 आपके पास। ये याद रखें कि फिजिकल एड्रेस आप सिर्फ उसका डाल सकते हैं जो आपके साथ डायरेक्टली कनेक्टेड हो। जो डायरेक्टली कनेक्टेड ना हो उसका फिजिकल एड्रेस आपको पता नहीं होता। इस A को इस ये 10 जो है, इस 10 को इस 20 का पता है, इस 99 को इस 33 का पता है, लेकिन इस 99 को इस 66 का पता नहीं है। लॉजिकल एड्रेस आप किसी और का भी फाइंड आउट कर सकते हैं कि एक बंदा कराची में बैठा हुआ जो भी है, लेकिन फिजिकल एड्रेस उसका सिर्फ आपको पता होगा जो आपके पास डायरेक्टली कनेक्टेड हो। दैट इज व्हाई इट इज नोन एज फिजिकल एड्रेस, जो आपके पास फिजिकली कनेक्टेड हो। क्लियर? यस सर। सर तो ये अपने आगे 33 फिर क्यों लिख रहा है सर? इसको तो बस वैसे भी 33 तक जाना है ना। तो आप बताएंगे नहीं इसको कि आपने 33 की तरफ जाना है? अभी राउटर के साथ और भी कनेक्टेड है इधर उधर। राउटर के साथ यहाँ देखिए मैंने लेन नंबर 2 लिखा हुआ है, हो सकता है कि यहाँ पे दरमियान में कोई कंप्यूटर्स कनेक्टेड हो। क्लियर सर, क्लियर। ठीक है, आपने फिजिकल एड्रेस तो वो करना है ना। ठीक है, ओके। सो T99 आपके पास, ठीक है। तो राउटर के साथ ये दूसरा राउटर कनेक्टेड है, यहाँ पे हो सकता है दरमियान में स्विच लगा हुआ और उसके पास 10 कंप्यूटर्स और कनेक्टेड हो, तो फिर क्लियर।
तो आपने फिजिकल एड्रेस बताना है जिस रास्ते पे आप जा रहे हैं, ठीक है। सो आप देख रहे हैं आपने अब कौन से इंटरफेस से इसको फॉरवर्ड करना है, ये वाला इंटरफेस आपका कनेक्टेड है इस राउटर 2 के साथ, ठीक है। तो द डेस्टिनेशन एड्रेस इज 33 एंड द सोर्स एड्रेस इज 99। राउटर 1 के कितने एड्रेसेस हैं? 3। उसके कितने फिजिकल एड्रेसेस हैं? 99। 3, ठीक है। 1 is 99, 1 is 20 and 1 is 44। 99 जो है वो राउटर 2 के साथ कनेक्टेड है, 20 जो है वो सेंडर के साथ कनेक्टेड है और 44 जो है वो किसी और के साथ कनेक्टेड है। क्लियर? तो जब Yes, आप इस इंटरफेस से पैकेट को फॉरवर्ड करेंगे फ्रेम को, तो आप सोर्स क्या डालेंगे? 99 को ही डालेंगे ना। यस सर। ठीक है, Yes, sir. ठीक है। सो 99 एंड फॉरवर्ड इज टू राउटर नंबर 2। तो आप देख रहे हैं फिजिकल एड्रेस चेंज हो गया। पहले फिजिकल एड्रेस यहाँ पे 2010 था, इस राउटर ने इस फिजिकल एड्रेस को 3399 कर दिया है। लेकिन इसको किस बेस पे 3399 किया? डिसीजन इसको कौन से एड्रेस से पता लगी है? लॉजिकल एड्रेस है। लॉजिकल पे, ठीक है। सो लॉजिकल पे आप लोग डिसीजन लेते हैं और फिजिकल पे एक्चुअल ट्रांसमिशन करते हैं। क्लियर? यस सर। ओके, क्लियर सर। जी। ये 33 इसमें लॉजिकल एड्रेस है, 33 फिजिकल एड्रेस है, तो मैंने शुरू में आपको बताया था। लॉजिकल इज टी और एन। सर ये लॉजिकल नाम भी इसी तरह है कि मतलब ये इस पे डिसीजन लेता है। क्या मतलब? मतलब ये डिसाइड करता है कि डेटा किस तरफ ले जाना है। हाँ, लॉजिकल देखे, जैसे लॉजिकल इसलिए, हाँ लॉजिकल इसको इसलिए कहते हैं कि इस पे डिसीजन होती है। लॉजिक गेट्स आप लोगों ने पढ़े ना, तो वो क्या करते हैं? डिसीजन लेते हैं ना इनपुट्स पे। दैट इज व्हाई इट इज नोन एज लॉजिकल एड्रेस, क्योंकि इस पे राउटर हर दफा डिसीजन लेता है कि मैंने इसके साथ क्या करना है, ये किस तरफ रास्ता जा रहा है। मैं आपको कहूं कि यहां से जाएं सदर की तरफ, तो दिस सदर इज योर लॉजिकल एड्रेस। आप हर एक चौक पे जाएंगे और डिसाइड करेंगे कि मैंने आप किस तरफ मुड़ना है, आप किस तरफ मुड़ना है, आप किस तरफ मुड़ना है। तो दिस सदर इज योर लॉजिकल एड्रेस आपके पास। क्लियर? यस सर। क्लियर। ओके, जब ये फ्रेम यहाँ पे पहुंचेगा आपके पास, तो राउटर 2 जो है वो इस फ्रेम को चेक करेगा। तो द फर्स्ट एड्रेस इज 33, यस इट इज मी, ठीक है। द सेकंड एड्रेस इज 99 विच इज द सोर्स एड्रेस ऑफ दिस राउटर। इसको पता लग गया कि इसको ये राउटर 1 ने मुझे भेजा है, ठीक है। यस सर। ट्रेलर और 3399 को रिमूव कर देगा और एपीओ डेटा इसके पास नेटवर्क लेयर पे बच जाएगा। तो जब नेटवर्क लेयर पे ये अगेन पी को चेक करेगा अपने राउटिंग टेबल में, तो पी क्या इसके साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है कि नहीं? कनेक्टेड है सर। Yes, Connected P is directly connected to router 2 using this interface आपके पास. So it will again make another frame, ठीक है? And the destination address will now be what? Next का जो 95 and the source address is 66. The next is 95. वो directly आपके पास आ गया 95. Clear? ठीक है? तो 95 आप destination में डालेंगे, 66 is your source और इसी फ्रेम को आगे फॉरवर्ड करेंगे 95 की तरफ। जब 95 की तरफ आप आएंगे तो 95 will check the frame. The destination is 95. Yes, it is for me. Remove these addresses and trailer and check the network layer. Mic बंद कर दें please. To check the network layer. Now when the receiver checks the network layer, the source is A and the destination is P. तो क्या P में हूं कि नहीं हूं? है, एक्सेप्ट कर हूं सर। ठीक है, so P में हूं तो I will not forward this frame to anyone else, और मैं P हूं तो ये फ्रेम मेरे लिए है, so डेटा को अपर लेयर की तरफ भेज दो, ट्रांसपोर्ट लेयर की तरफ। क्लियर? यहाँ पे कोई मसला तो नहीं है? क्लियर सर। इसमें क्लियर हो गया सर। हाँ सर। इसमें ठीक है, तो इट इज वेरी इजी, इसमें कुछ नहीं है। ठीक है, ये सब कुछ मैंने यहाँ पे आपको समझा दिया। ठीक है, इन वन गो। सो फिजिकल एड्रेस इज बेसिकली चेंज फ्रॉम हॉप टू हॉप एंड द लॉजिकल एड्रेस इज बेसिकली चेंज्ड और नॉट। लॉजिकल एड्रेस चेंज होता है कि नहीं होता?
सर वो No, sir. सर Very good. So logical address is not changed throughout the journey of packet from source to destination, and physical address is changed from hop to hop आपके पास. Clear? यस सर. ठीक है. So that is why a network, a router is only a layer 3 device because it only goes up to the network layer. वो सिर्फ network layer में check करता है that this address is in my routing table है कि नहीं है मेरे पास, बस. ठीक है. So is this available in my routing table or not? So that is why it does not go up to the transport layer. वो आगे नहीं जाता. Clear? So that is why a router is sometimes known as a layer 3 device. Clear? Yes sir. Which only works up to layer 3. Physical data link and network आपके पास. The next one is port addressing. So IP and physical are necessary for a quality of data to travel from source to destination host. सोर्स और डेस्टिनेशन तक आपने जाना है तो आपने फिजिकल एड्रेस और लॉजिकल दोनों का इस्तेमाल करना है. बट व्हेन यू रीच द डेस्टिनेशन, नाउ यू नीड टू आइडेंटिफाई द करेक्ट प्रोसेस, करेक्ट एप्लीकेशन. सो एड्रेस फॉर डिफरेंट प्रोसेसेस इज कॉल्ड पोर्ट एड्रेसेस. पोर्ट एड्रेसेस आर नेसेसरी फॉर प्रोसेस टू प्रोसेस कम्युनिकेशन. इट इज बेसिकली 16 बिट इन लेंथ आपके पास. ठीक है, वो भी हम फिर वो शो करेंगे. सो दिस इज बेसिकली अ फिगर which basically shows how a communication is done from process to process आपके पास. ठीक है. So ABC is a process here, JK is a process here. So process A wants to communicate with process J आपके पास. Clear? Yes sir. Yes sir. So data is Yes, application layer यहाँ पे. Data is transmitted to transport layer. Transport layer appends the source port address and the destination port address. Similarly, this data is then forwarded to the network layer. Network layer उसके साथ destination logical address और source logical address लगा लेता है. And then this data is transmitted to the data link layer. Data link layer basically converts this into frame with headers and trailers आपके पास. तो आप देख रहे हैं कि आपका डेटा सिर्फ ये येलो पोर्शन है, बाकी सारे एड्रेसेस हैं आपके पास. Clear? Yes sir. So that is how each layer basically appends its own control information with the data आपके पास. और भी बहुत सारे इंफॉर्मेशन होती है, ये तो सिर्फ हम यहाँ पे एड्रेसेस पढ़ रहे हैं. We will study that in computer networks. Clear? So H2 trailer. So at the receiver, this header and trailer is removed. Similarly, at the network layer, A and P is removed, and at the transport layer, A and J is removed. और J का जो डेटा है वो J की तरफ ही आपके पास आएगा. ठीक है. तो ये J कहां पे यूज हो रहा है? ओनली एट द डेस्टिनेशन कंप्यूटर, नॉट इन द इंटरनेट आपके पास. क्लियर? Yes sir. Yes sir. एनी क्वेश्चन? सर ये लॉजिकल एड्रेस जो है सर, ये फिंगरप्रिंट की तरह ये सर किसी और का नहीं हो सकता है सर? हाँ, किसी और का नहीं हो सकता. बिल्कुल किसी और का हो सकता है. ये इस तरह ये बात नहीं है. फिंगरप्रिंट इज ये आपने गलत एनालॉजी पेश किया आपके पास. ठीक है. It is not like this. सर फिर तो गलत भी हो सकते हैं, मतलब एक्सेस आप कर सकते हैं. ये लेट्स से मैं आपको यहाँ पे आपने एक कंप्यूटर कनेक्ट किया है इंटरनेट के साथ और ये कंप्यूटर खराब हो गया और आपने इस कंप्यूटर को पेन दिया, आप दूसरा कंप्यूटर लेके आ गए तो आपका दूसरा कंप्यूटर है वही आईपी एड्रेस इस्तेमाल कर रहा है. क्लियर? यस सर. ठीक है. फिंगरप्रिंट तो अगर आप मर गए तो आपका फिंगरप्रिंट तो मैं दूसरे के साथ नहीं लगा सकता हूँ. ठीक है सर. ठीक है. तो आईपी एड्रेस आप खुद नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर देता है, मैं दूंगा. मैं जब कंप्यूटर सेट करूंगा तो यहाँ पे मैं आईपी एड्रेस खुद दूंगा. तो जब एक कंप्यूटर खराब हो जाए तो मैं उस कंप्यूटर को साइड पे कर दूंगा और दूसरा कंप्यूटर में लगा दूंगा उसकी जगह पे, एंड आई विल असाइन द सेम आईपी एड्रेस टू द कंप्यूटर. क्लियर? यस सर. क्लियर? सर हम अपने कंप्यूटर का आईपी एड्रेस चेंज कर सकते हैं खुद? हाँ, चेंज कर सकते हैं खुद. बट ये मैं फिर आपको बताऊंगा. इट इज अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड थिंग ना, ये इस तरह डायरेक्ट नहीं है. इफ बाय देखें यहाँ पे एक प्रॉब्लम है. आईपी एड्रेस कितने बिट का? सर आईपी एड्रेस नहीं होती. आईपी एड्रेस कितने बिट का है? तो चलिए मुझे जरा ये बताएं. 32 बिट्स का है. ठीक है. 32 बिट. तो कितने नंबर ऑफ एड्रेसेस हमारे पास हो गए हैं? 8. चलिए शाबाश. मैं जरा ये तो पूछ लूं ना, ये आप लोग ने डीएलडी सब कुछ पढ़ा हुआ है. इफ एन एड्रेस इज हैविंग 32 बिट्स, ठीक है, तो हाउ मेनी एड्रेसेस आर देयर? 4 एड्रेसेस सर. अस्तगफिरुल्लाह. कितने हो गए यार? कोई और? सर वो
वो लगाएंगे 32 पे सर, क्या लगाएंगे? मल्टीप्लिकेशन पावर में कुछ तो क्या मतलब बताए ना। सर, भूल गए हैं थोड़ा थोड़ा। कोई और, शाबाश, आप लोग 6 सेमेस्टर के स्टूडेंट है, कोई और। सर क्वेश्चन की नहीं समझ आई। सर if there is a number of, if there are 32 bits, how many 2 की पावर 32। how many numbers are possible? 2 ये power सर अब याद आ 32। गया। ये सर तो ये तो बहुत ज्यादा हो जाता तो है। मैं भी आपको कह रहा हूँ ना कि 32 बिट एड्रेस है, तो कितने कॉम्बिनेशंस पॉसिबल है हमारे पास, कितने नंबर ऑफ एड्रेसेस पॉसिबल हैं? 2 power 32। 2 raised to power 32। यस, तो 2 raised to power 32 इज अराउंड 4 बिलियन आपके पास। क्लियर? अराउंड 4 बिलियन, 4 समथिंग 4 बिलियन आपके पास आ रहे हैं। ठीक है, तो देयर आर 4 बिलियन एड्रेसेस इन द इंटरनेट। सो क्या हमारे पास जो कंप्यूटर्स और मोबाइल्स और इन सारे की तादाद है वो 4 बिलियन है या इससे ज्यादा है? सर इससे ज्यादा है। मैंने आपको उस दिन दिखाया भी था, कितने? सर अप्रॉक्स 20 बिलियन, 20 ट्रिलियन आपके पास है, कुछ इस तरह आ रहा है आई थिंक। ठीक है, तो 20 to 24 approximately। सर फिर तो इनके लिए पूरे नहीं हो सकते सर। सॉरी 15 बिलियन है। ठीक है, बाय 2025 इट विल बी इन ट्रिलियन आपके पास। ठीक है, 15 बिलियन है, तो 4 बिलियन से तो मैं सारा पूरा भी नहीं कर सकता हूँ, तो इसके लिए हमने तरीके निकाले हुए, एंड दैट यू विल स्टडी इन योर कंप्यूटर नेटवर्क आपके पास। ठीक है, तो आप जब अपने आपका जो आईएसपी का यहाँ पे राउटर लगा हुआ है, तो बेसिकली आईएसपी आपके राउटर को आईपी एड्रेस असाइन करते हैं। ठीक है, बिकॉज द पॉइंट ऑफ कनेक्शन इज योर राउटर आईएसपी के साथ। तो जब आप इंटरनेट को राउटर को ऑन करते हैं, बंद करते हैं, तो आपका आईपी एड्रेस चेंज हो जाता है, यूनिक नहीं रहता। ठीक है, वाई, ये हम फिर पढ़ेंगे कि क्यों। अब नाउ google.com, तो google.com इज यूनिक थ्रू आउट द वर्ल्ड आपके पास। क्लियर? So there are two types of users in the internet. One that is providing services and one that is accessing the services. ठीक है, एक वो यूजर है जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है और एक वो यूजर है जो सर्विसेज को एक्सेस कर रहा है। सो आपके ख्याल में इन दोनों में से कौन सा यूनिकनेस किसके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है? सर्विस प्रोवाइडर सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, आपके लिए इतनी यूनिकनेस पॉसिबल जरूरी नहीं है, इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसका हमने एक हल निकाला हुआ है। वी विल स्टडी दैट इन दी कंप्यूटर नेटवर्क्स आपके पास। ठीक है, सो बट द हल जो सोल्यूशन है दैट इज अ लॉन्ग टर्म सोल्यूशन, तो एक है हमारे पास, बस उसमें हम लोग गए नहीं है। दैट इज IPv6। IPv6 is 128 bits long, 128 bit. So how many IP addresses are possible? 2 की पावर 128 2 की पावर 128, and it is said that if जितनी अगर आपके पास इस यूनिवर्स की लाइफ है, लेट्स से, ठीक है, उसको भी आप अगर 5 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास ये एड्रेसेस खत्म नहीं होंगे, इतना टाइम के लिए वो एड्रेसेस आपके पास होंगे। बट दैट इज अ स्लो ट्रांजिशन। अभी कुछ ना कुछ लोग ट्रांजिशन कर रहे हैं IPv6 में, बट आई टोल्ड यू दैट ट्रांजिशन फ्रॉम वन स्टैंडर्ड टू अनदर स्टैंडर्ड इज नॉट अ रैपिड थिंग, इट इज अ स्लो प्रोसेस। व्हाई इट इज अ स्लो प्रोसेस? बिकॉज आप खुद जरा सोचें, आपने सारे जो इंटरनेट में राउटर्स हैं उन सारों को चेंज करना है IPv6 में, सो इट इज नॉट अ वन डे प्रोसेस आपके पास। ठीक है, उससे आपके पास कम्युनिकेशन भी इम्पैक्ट हो रही है, सब कुछ हो रहा है, तो आप स्लो जाएंगे। एट यूजर लेवल तो आप कर सकते हैं, आप घर में IPv6 इस्तेमाल कर सकते हैं, बट इफ यू वांट टू कनेक्ट टू द ISP, आपका ISP IPv4 ही इस्तेमाल कर रहा है, 32 बिट इस्तेमाल कर रहा है। जब तक आपका ISP 128 बिट पे नहीं जाएगा तो आप नहीं जा सकते इंटरनेट में। ठीक है, और क्यों वो नहीं जा रहे? बिकॉज इट इज नॉट अ वन डे प्रोसेस। यस, बिकॉज फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट जो उन्होंने IPv4 में की हुई है। आप एक राउटर 1 करोड़ लेते हैं और आप उस करोड़ वाले राउटर को दूसरे दिन पेंग देते हैं कि यार नहीं, अब तो IPv6 आ गया। क्लियर? So that is why they need to make profits और वो सब कुछ करना है। और उसके बाद and it is not like your 3G and 2G. 3G and 2G is just limited to a country. Internet is a global phenomena आपके पास। Clear? That is not possible. Okay. Port address is like this thing आपके पास। ठीक है, 16 बिट है और हम डेसिमल में उसको वो करते हैं, शो करते हैं। स्पेसिफिक एड्रेस इज
not an address actually, but it is used in this book आपके पास, ठीक है. So some applications have user friendly addresses that are designed for their specific addresses, like email address. email address is basically which defines the recipient of email आपके पास, ठीक है. तो वो एप्लीकेशन स्पेसिफिक है आपके पास. जिस तरह आप मैसेंजर यूज करते हैं, स्काइप यूज करते हैं, तो स्काइप में आपका एक निकनेम होता है. तो दिस निकनेम इज बेसिकली स्पेसिफिक टू ओनली स्काइप आपके पास. इससे इंटरनेट का कोई काम नहीं है, ठीक है. यस सर. लाइक योर व्हाट्सएप मोबाइल नंबर है जो आपका, ठीक है. तो दैट इज ओनली स्पेसिफिक टू दैट मोबाइल, सॉरी दैट व्हाट्सएप आपके पास. व्हाट्सएप So ओनली. similarly यस your सर. email is specific to your email address, email application आपके पास. Clear? ठीक है सर. Yes, sir. Okay. So this is the end of this chapter आपके पास. Clear? So now we will go into the chapter number 3, and from here we are going to start our physical layer आपके पास. Clear? So आज के लेक्चर में टच ओवरव्यू है, बच्चों वाली चीजें हैं, बट लेट मी टेस्ट योर नॉलेज कि आप लोगों को कुछ पता भी है कि नहीं. सो आई एम कमिंग इन 2-3 मिनट्स. ओके, ठीक है सर. शॉर्ट ब्रेक फिर हमें आते हैं, ठीक है. Yes, sir.
Okay, so welcome back. Okay, so now we are starting our physical layer. So I told you that we will study physical and data link layer in this data communication course. Then we will study the network and the transport layer and application layer in the computer networks course. अगर मैं यहाँ पे हुआ, ठीक है, और अगर जिंदगी रही तो फिर मैं कंप्यूटर नेटवर्क्स में वो आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है. So chapter number 3 is about data and signals. So to be transmitted, data must be transformed to electromagnetic signals. ये तो आप सबको पता है, ठीक है. So either if you are going to transmit it using wire or using wireless, तो आपने data को electromagnetic signals में convert करना होगा आपने. करना है. ठीक है. Yes sir. So data can be analog or digital. So the term analog data refers to information that is continuous. Digital data refers to information that has discrete states आपके पास, ठीक है. So if I'm speaking, so this speaking is basically what? An analog data. It is having a continuous information आपके पास. Clear? And digital data is discrete. Discrete का मतलब है कि उसका कुछ खास वैल्यू होती है, कुछ खास टाइम के लिए, फिर कुछ खास वैल्यू होती है, कुछ खास टाइम के लिए आपके पास. Let's say I am saying that you have 1 for 5 seconds, then 5 volts for 5 seconds, then again 0 volts for 5 seconds, then again 5 volts for. तो आप देख रहे हैं कि आपकी discrete states हैं आपके पास कुछ खास टाइम के लिए, ठीक है. So analog data can take on continuous values, digital data can take on discrete values आपके पास, ठीक है. So sound made by human voice is analog data. This can be captured by a microphone and converted to analog signal. Now don't ask me how to convert this into analog signal by a microphone. आपको पता है? सर रिबोट्स भी बोलते हैं. सर रिबोट्स भी बोलते हैं सर. वो कौन सा होता है वो सर? एनालॉग है या डिजिटल? क्या चीज? रिबोट्स सर जो होते हैं वो भी बोलते हैं ना सर? वो एनालॉग ही होता है यार, रोबोट जो बोलते हैं. ठीक है सर. स्पीकर जो आपको इंफॉर्मेशन देगा, स्पीकर whenever you are hearing something out of the speaker, it is analog आपके पास. ठीक है सर. क्लियर? तो a beep is like a discrete value आपके पास. बीप आप 5 टाइम के लिए एक बीप को वो करते हैं, तो वो डिस्क्रीट किस्म की वैल्यू होगी आपके पास, ठीक है. So analog data is captured by a microphone and converted to an analog signal. So I have told you how to convert how a microphone converts basically an sound data into electrical analog data. Clear? आपको पता है पहले वाले क्लास में ना? Yes sir. ठीक है. And then it is sampled and converted to a digital signal. We will study what is sampling आपके पास, ठीक है. So digital data have discrete states and take discrete values. For example, data stored in computer memory in the form of zeros and 1. So 0 is a discrete value, confirm value के बस ये 0 है, and 1 is a confirmed discrete value आपके पास, ठीक है. So this digital data can be converted to a digital signal or modulated into an analog signal for transmission across a medium आप लोगों के पास, ठीक है. So जो digital data that is 10, first we need to convert that into digital signal आपके पास, ठीक है. And then digital signal को हम analog signal में भी convert कर सकते हैं for the sake of transmission. ये भी हम पढ़ेंगे कि क्यों करते हैं हम इस तरह, हम direct digital signal को क्यों वो नहीं करते, ठीक है. Okay. Again, this is analog signal and this is a digital signal. तो आप देख रहे हैं कि it has a continuous set of values throughout the time. और यहाँ पे आपके पास कुछ खास values हैं. From here to here the value is discrete. From here to here the value is 0. From here to here there is some another value. From here to here there is some another 0 value, and from here to here there is another value. तो आपकी कुछ खास discrete value होती है that is there for some time आपके पास. Clear? Then there are two another types of signal. They are periodic and non-periodic signals or aperiodic signals आपके पास, ठीक है. So a periodic signal completes a pattern within a measurable time frame and repeats that pattern over a subsequent identical periods. Clear? मतलब ये है कि आपके पास एक टाइम में एक सिग्नल पैटर्न बना रहा है और अगले टाइम में उसी
टाइम में अगेन उस पैटर्न को क्या कर रहा है, रिपीट बना कर रहा रहा है। है। अगर वो बार बार रिपीट हो रहा है आपके पास, सो दैट सिग्नल इज बेसिकली पीरियोडिक सिग्नल आपके पास, ठीक है। द कंप्लीशन ऑफ वन फुल पैटर्न इज कॉल्ड अ साइकिल आपके पास। अ नॉन पीरियोडिक सिग्नल चेंजेस विदाउट एग्जिबिटिंग अ पैटर्न और अ साइकिल दैट रिपीट्स ओवर टाइम आपके पास, ठीक है। सो अ नॉन पीरियोडिक सिग्नल, देयर इज नो पैटर्न आपके पास इन द पास, ठीक है। So in data communications, we commonly use periodic analog signals and non-periodic digital signals. ये हम पढ़ेंगे कि क्यों हम करते हैं, ठीक है। तो जब हम एनालॉग सिग्नल यूज करते हैं तो वो हम पीरियोडिक यूज करते हैं, और जब हम डिजिटल सिग्नल यूज करते हैं तो वो हम नॉन पीरियोडिक यूज करते हैं आपके पास। तो पीरियोडिक सिग्नल अगेन कैन बी क्लासिफाइड एज सिंपल और कंपोजिट आपके पास। A simple periodic analog signal, similarly a sine wave, cannot be decomposed into simpler signals. A composite periodic signal is composed of multiple sine waves. So इसका क्या मतलब है, ये कौन सा फिनोमेना आप लोग पढ़ चुके हैं। A composite periodic signal is composed of multiple sine waves. Anyone? शाबाश। कंपोजिट सिग्नल किसको कहते हैं, पहले तो मुझे ये बताएं। इसमें बहुत सारे सिग्नल हो सर, जो बहुत सारे साइन वेव्स उनके मजमू होता है, आप बहुत साइन वेव्स एड अप कर दें तो उससे कंपोजिट सिग्नल बनता है आपके पास, ठीक है, मुख्तलिफ फ्रीक्वेंसीज के। लेकिन मुझे ये बताएं कि इस सर का पता आपको किसने बताया। पूरी सीरीज से सर हम इनको मालूम कर सकते हैं। Fourier series, very good. Fourier series basically tells you that how many frequencies are Euler theorem नहीं है, Fourier series है आपके पास बच्चे, ठीक है। Fourier series basically tells you that a periodic signal is composed of, a composite periodic signal is composed of how many sine waves, उसमें कितने कौन कौन से component frequency के मौजूद हैं आपके पास, ठीक है। So most fundamental form of periodic analog signal is sine wave. साइन वेव इज द मोस्ट फंडामेंटल आपके पास, ठीक है, इससे ज्यादा फंडामेंटल आपके पास कोई और चीज नहीं है। साइन वेव कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय थ्री पैरामीटर्स। द फर्स्ट वन इज एम्पलीट्यूड, द सेकंड वन इज फ्रीक्वेंसी, द थर्ड वन इज फेज आपके पास, ठीक है। तो यू आल्सो नो व्हाट इज एम्पलीट्यूड। व्हाट इज एम्पलीट्यूड? द मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ द सिग्नल आपके पास, प्रोपोर्शनल टू इट्स एनर्जी आपके पास, ठीक है। सो इन दिस साइन वेव बेसिकली दिस इज योर पीक एम्पलीट्यूड आपके पास, उसकी इंटेंसिटी कितनी है आपके पास। सो सिग्नल विद हाई पीक एम्पलीट्यूड विल हैव अ हाई एम्पलीट्यूड आपके पास, ठीक है, एंड अ सिग्नल विद लो पीक विल हैव, क्या होगा आपके पास, लो एम्पलीट्यूड होगा आपके पास। क्लियर? इसमें कुछ समझाने की जरूरत नहीं है आई थिंक आपके पास। Okay, period refers to the amount of time in seconds a signal needs to complete one cycle. So this is periodic signal. Why it is periodic? कि आपके पास जो पैटर्न है वो बार बार रिपीट हो रहा है आपके पास। So a period basically refers to the amount of time in seconds a signal needs to complete one cycle आपके पास। एक साइकिल कंप्लीट करने के लिए how much time does it take a signal to complete one cycle? This is known as period. Now what is frequency? How many periods are there in 1 second आपके पास? How many cycles of signal are there in 1 second? That is frequency आपके पास, ठीक है। So a higher frequency means greater number of cycles in 1 second, and a lower frequency means what? Lower cycle per second. So frequency and period are inverse of each other. F is equal to 1 over t and t is equal to 1 over f. आपको पता है, clear? So two signals with same amplitude and phase but different frequencies आपके पास, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी कम है। So this is 1 second. So 1 second में हमारे पास 12 periods आ रहे हैं, तो this is 12 hertz in frequency आपके पास, ठीक है। Here the frequency is 6 hertz आपके पास, periods कम हो गए, ठीक है। So units and periods of frequency is kilohertz, मेगाहर्ट्ज, गीगाहर्ट्ज, मिलीसेकंड्स, सॉरी टेराहर्ट्ज आपके पास, और इक्विवेलेंट जो पीरियड का यूनिट होगा वो मिलीसेकंड, माइक्रोसेकंड, नैनोसेकंड, पिकोसेकंड होगा आपके पास। क्लियर? तो दिस इज वेरी इजी, ये खुद देख लें, इसमें कुछ इसका नहीं है, ठीक है। पीरियड गिवन है और फ्रीक्वेंसी मांग रहे हैं आप लोगों से, तो इट इज 8th क्लास
आपके पास, ठीक है। बट दिस बुक, ये बुक आसान इसलिए कि ये बुक बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करती है और थोड़ा थोड़ा ऊपर जाके कम्प्लेक्स की तरफ जाती है, ठीक है। सो फ्रीक्वेंसी इज द रेट ऑफ चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। यस, जाहिर बात है, ज्यादा आपके पास उसमें साइकिल्स होंगे तो रेट ऑफ चेंज आपका ज्यादा होगा, कम होंगे तो रेट ऑफ चेंज कम होंगे। तो चेंज इन अ शॉर्ट स्पेन ऑफ टाइम मीन हायर फ्रीक्वेंसी, चेंज ओवर अ लॉन्ग स्पेन ऑफ टाइम मीन्स लोअर फ्रीक्वेंसी। नाउ देयर इज नो चेंज ओवर अ स्पेन ऑफ टाइम। इसका क्या मतलब है? कांस्टेंट होगा, जीरो फ्रीक्वेंसी। द फ्रीक्वेंसी इज जीरो एंड देयर इज एन इनफाइनाइट चेंज, सडन चेंज। तो क्या होगा? टाइम पीरियड्स infinite. So if a signal does not change at all, its frequency is ample. If a signal changes instantaneously, its frequency is what? Infinite. So a very simple thing is like this. So let's say you have a signal which is 1 second आपके पास, ठीक है। So there is no change. तो जब कोई change नहीं है तो frequency is 0. Now there is a change, but it is like this, from 0 to 1, instantaneous change है आपके पास। The rate of change is what? The rate of change is infinite. कि within no time आपका जो सिग्नल है वो 0 से क्या हो गया? 1 की तरफ गया, 1 की तरफ आ गया, which is practically impossible क्योंकि कुछ ना कुछ आपके पास टाइम लगा होगा 0 से 1, ठीक है। But we say that this frequency is infinite. Infinite. Clear? Yes, sir. Phase describes the position of the waveform relative to time 0. Phase is measured in degrees or radians आपके पास, ठीक है। So here the phase is 0. The signal is starting from the origin आपके पास, ठीक है। तो relative of time 0, आपका सिग्नल जो है वो 0 टाइम से 0 से स्टार्ट हो रहा है। Your signal is starting from peak amplitude here, and your signal is starting from क्या? 0 again. 0 again, but in the डाउन डायरेक्शन आपके पास, ठीक है। रिवर्स डायरेक्शन में स्टार्ट हो रहा है, क्लियर? अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास the period is 90 degrees, sorry, the phase is 90 degrees, here the phase is 180 degrees, ठीक है। सो अगर आप इस सिग्नल को जरा पीछे की तरफ इमेजिन करें तो ये इस तरह का आपका सिग्नल टाइम में पहले से स्टार्ट हुआ है, क्लियर? यस सर। So a sine wave with a phase 0 start with at a time 0 with 0 amplitude. A sine wave with a phase 90 start at a time 0 with peak amplitude. A sine wave with a phase 180 start at a time 0 with 0 amplitude. The amplitude is decreasing आपके पास. So another way to look at is a sine wave with a phase 0 is not shifted. A sine wave with a phase 90 is shifted to the left by 1/4 of a cycle. ठीक है? However, exists that the signal does not really exist before time. मैंने आपको कहा था imagine करें आप लोग, clear? A sine wave with phase 180 is shifted to the left by half cycle. However, note that the signal does not really start before time 0 आपके पास, ठीक है? Clear? So a sine wave is offset of 1/6 cycle with respect to time 0. What is the phase in degree and radians? So आपका complete cycle 360 डिग्री का है, तो 1/6 आपके पास क्या होगा? 60 डिग्री। तो आपका फेज जो है वो 60 डिग्री है आपके पास। अगर रेडियन में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो उसे आप लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, क्लियर? यस सर। ओके, सो वेवलेंथ एंड पीरियड आप लोग के पास, ठीक है। सो व्हाट इज वेवलेंथ? एनीवन? सर साइकिल में क्या? The distance between two adjacent crust or trough is called wavelength. वो भी ठीक है, बट वेवलेंथ बेसिकली इज द डिस्टेंस इट ट्रेवल्स इन 1 सेकंड आपके पास। द वेव डिस्टेंस कितना ट्रेवल करता है 1 सेकंड में, दैट इज 1 वेवलेंथ आपके पास, ठीक है। तो जाहिर बात है आपका ट्रफ और दो कंसेक्यूटिव ट्रफ्स के दरमियान जो डिस्टेंस होगा तो एक साइकिल में उतना ही डिस्टेंस ट्रेवल करेगा मीडियम में ना, वो इसी तरह है ना? यस सर। सर टाइम से समझे नहीं सर, आपने क्या बोला सर? ये प्रोपेगेशन आपके पास है ना, कि वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है 1 सेकंड में,
आपके पास। सर वो तो अगर फ्रीक्वेंसी जिसकी ज्यादा So it होगी depends वो upon the propagation speed, but also the ये क्या है आपके पास फ्रीक्वेंसी पे भी डिपेंड करता है। C is equal to lambda f अगर आपको याद हो, यस ठीक सर। है। तो wavelength is dependent upon the speed and the what फ्रीक्वेंसी। और ये s is equal to vt अगर आप उससे उसी से निकला है आपके पास। C is equal to lambda f is basically is equal to s is equal to vt। लेकिन ये भी मुझे समझाना पड़ेगा कि s is equal to vt से किस तरह निकला है। शाबा s is lambda आपके पास, क्लियर? यस सर। So lambda is equal to c by f है आई थिंक, ठीक है। s is lambda and what is your s is equal to vt। ये मैं क्या बता रहा हूँ, s is equal to vt आप लोग को पता है कि क्या चीज है? सर ये v जो है स्पीड है, t टाइम है, s जो है डिस्टेंस है। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, क्लियर? यस सर। तो s को lambda से रिप्लेस करें, v को c से रिप्लेस करें, ठीक है, वेलोसिटी, क्योंकि हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पढ़ रहे हैं तो वो स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करती हैं, ठीक है, c। और जो t है उसको रिप्लेस करें किससे, 1/f से आपके पास, ठीक है। तो lambda इज इक्वल टू क्या आएगा आपके पास? lambda is equal to c divided by lambda। c by f, ठीक है, c by f आपके पास, क्लियर? सो इट इज द सेम थिंग जो मैंने आपको बताया कि c इज इक्वल टू lambda f आपके पास, क्लियर? तो lambda इज इक्वल टू c by f आपके पास, क्लियर? यस सो सर। दिस इज बेसिकली डिस्टेंस, बट इट डिपेंड अपॉन द फ्रीक्वेंसी एंड द प्रोपेगेशन स्पीड आपके पास, क्लियर? यस सर। यस सर। सो So the wavelength is basically the distance a simple signal can travel in one period। आप लोगों के पास सिंपल सी चीज है आपके पास, ठीक है। Okay, so the time domain and frequency domain plots of a sine wave. So have you ever studied a frequency domain plot before? किसी और सब्जेक्ट में आपने पढ़ा है? ये सर बोर्ड प्लॉट्स पढ़े हैं फिल्टर में। बोर्ड प्लॉट्स किस में पढ़े हैं आप लोगों ने? सर जी वो सर्किट 2 में पढ़ा था सर जी, फिल्टर पे भी। सर्किट 2 में आप लोगों ने फोरियर सीरीज में भी पढ़ा होगा, ठीक है। बेसिकली अ टाइम डोमेन जो हम ये हमारे एक एक्सिस पे टाइम है और एक एक्सिस पे एम्पलीट्यूड है आपके पास। सो दिस इस पे जब हम सिग्नल को प्लॉट करते हैं तो दिस प्लॉट इज नोन एज टाइम डोमेन प्लॉट आपके पास, बट दिस प्लॉट डज नॉट गिव यू एनी इंफॉर्मेशन अबाउट द फ्रीक्वेंसी। सो देयर इज अनदर प्लॉट व्हिच इज नोन एज a frequency domain plot in which the x-axis is frequency and the y-axis is amplitude. So when I plot this upper time domain plot in frequency domain plot, so basically मैं इसकी frequency plot करूँगा। So I will plot the frequency which is 6 hertz on the 6 hertz और मैं कहाँ तक जाऊँगा, peak value तक जाऊँगा 5 volt। So it basically tells me that I have a signal with 5 volt peak amplitude and a frequency is of 6 volts 6 hertz आपके पास, ठीक है, clear? Yes sir। So Yes this sir। frequency domain plot is sometimes also known as a spectrum, clear? तो what is spectrum? Spectrum आप लोगों ने कहाँ पे पढ़ा होगा? spectrum of light। अगर आप लोगों को याद हो, प्रिज्म आप लोगों के पास स्पेक्ट्रम को क्या करता है, डिवाइड करता है इनटू डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज। वो आपको हर एक लाइट की जो फ्रीक्वेंसी थी वो उसको डिफरेंट दे देते हैं आपके पास। रेड वेब आप लोगों ने वेब गौर पढ़ा होगा, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, ऑरेंज, रेड, ठीक है। तो वो रेड की वेवलेंथ ज्यादा होती है। यस हाँ, दिस इज नॉन स्पेक्ट्रम जिसमें हर एक डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज के वो हैं, ठीक है। तो अ कंप्लीट साइन वेव in the time domain can be represented by one single spike in the frequency domain। तो frequency domain is a simple representation of the time domain plot आपके पास, जिसमें हमारे पास सिर्फ frequency होती है और कुछ नहीं, and the peak amplitude आपके पास, clear? So अब मैं आपको बताऊंगा कि ये क्यों जरूरी है, ये जो हम frequency domain पढ़ते हैं ये क्यों जरूरी है। So a complete sine wave, अच्छा ये हो गया। The frequency domain is more compact and useful when we are dealing with more than one sine wave आपके पास, ठीक है। So this shows basically 3
डिफरेंट टाइम डोमेन प्लॉट्स ऑफ अ सिग्नल, हमने एक ही प्लॉट पे 3 डिफरेंट साइन वेव प्लॉट किए हैं, one with a frequency of 0, one with a frequency of 8, another with the frequency of 16 आपके पास। तो आप देख रहे हैं this plot have become a very complex plot, but what if I plot this signals on a frequency domain plot, तो आप देख सकते हैं कि मेरा एक frequency जो होगा वो 15 तक जाएगा with the frequency of 0, another spike will be with the frequency of 8 up to 10, another will be of 16 up to the 5 आपके पास। So this is a more convenient representation of this plot आपके पास। Clear? Yes sir. Frequency domain आपके पास same 3 signals का जो है वो less complex है in time domain से। Clear? Yes sir. Very good. Clear sir. A signal frequency sine wave is not useful in data communication. Why? सिंगल साइन वेव से आप एक ही चीज को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कितने आप डिफरेंट चीजों को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आप लोग एक 1010 को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक ही पैटर्न को ज्यादा से ज्यादा कर सकते हैं। Yes sir. ज्यादा नहीं कर सकते, बट आई नीड लाइक हमारे पास तो डिजिटल डेटा होगा 1010001111110011, सो आई कैन नॉट रिप्रेजेंट दिस बाय अ साइन वेव। आपके पास साइन वेव से आप एक ही पैटर्न को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्लियर? तो साइन वेव यूजफुल है किस चीज के लिए? एक अलार्म सिग्नल के लिए। अगर मैं कहूं कि ये कंडीशन मेट हो जाए तो एक साइन वेव जनरेट कर दो 5 हर्ट्ज का, तो उससे आप जब स्पीकर पे सुनेंगे तो आपके पास एक अलार्म आएगा। ठीक है, तो दैट इज यूजफुल फॉर साइन वेव आपके पास। So according to Fourier analysis, any composite signal is a combination of simple sine wave with different frequencies, amplitudes and phases आपके पास। ठीक है, तो if the composite signal is periodic, the decomposition gives a series of signal with discrete frequencies। अब यहाँ पे देखें, हमने periodic signal पढ़ लिया और फिर periodic signal में हमने sine wave पढ़ लिया। ठीक है, now we are studying composite signal, but again in composite signal there are 2 types of signals, periodic and non-periodic। ठीक है, and I told you that composite signal is a combination of different sine wave। ठीक है, so Fourier analysis हमारे पास एक बंदा था जिसने एनालिसिस की थी कि हाउ टू ब्रेक डाउन अ कंपोजिट सिग्नल इनटू सिंपल साइन वेव्स। सो उसने ये एनालिसिस की है कि एनी कंपोजिट सिग्नल is a combination of simple sine wave with different frequencies, amplitudes and phases। I've studied this in your circuit analysis, आपने पढ़ा होगा। ठीक है, तो जो composite signal होगा वो different frequencies, amplitude और phases का क्या होगा? एडिशन होगा आप लोग के पास। ठीक है, मजमूआ होगा आपके पास। ठीक है, but now there are 2 types of composite signals, periodic and aperiodic। If the composite signal is periodic, the composition gives a series of signal with discrete frequencies। इसका मतलब ये है कि एक आपके पास composite signal है तो उसको जब आप Fourier एनालिसिस करेंगे तो उसके जो साइन वेव बनेंगे, जो आपके पास डिफरेंट साइन वेव आएंगे, उसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो कम डिस्क्रीट होगी, लाइक 2f, 3f, 4f, 5f, 8f, 9f, 10f। क्लियर? इस तरह होगा, लाइक 1, 4, 8, 7, 16, 15, 20 इस तरह आपके पास होंगे। बट इफ यू decompose a non-periodic signal, the decomposition will give you a combination of sine waves with continuous frequencies आपके पास। उसका जो फ्रीक्वेंसी आपके पास होगी वो कंटिन्यूस होंगी, लाइक 1.1, 1.112, 1.113, 1.114 एंड सो ऑन आपके पास। क्लियर? Yes sir। So figure 3.9 shows a periodic composite signal with frequency f आपके पास। ठीक है, this is basically a periodic composite signal with the frequency of f आपके पास। ठीक है, this type of signal is not typical of those found in data communication। ये भी आपको कहीं data communication में नजर नहीं आ रहा होगा। ठीक है, we considered it to be 3 alarm system, each with different frequency। ठीक है, so basically this signal is what? This is this signal। 3 डिफरेंट सिग्नल्स हैं आपके पास, एक फ्रीक्वेंसी है f, एक फ्रीक्वेंसी है 3f, एक फ्रीक्वेंसी है क्या? 9f आप लोगों के पास। क्लियर? सो दिस
फ्रीक्वेंसी जो आप लोग एफ उसको कहते हैं, अच्छा ये एक सिग्नल है और इसका हमने फोरियर सीरीज कर दिया। जब हमने फोरियर सीरीज कर दिया, वी हैव found out that there are three frequencies. One is f, one is 3f, one is 9f. So the frequency f is basically known as fundamental frequency. Why it is known as fundamental frequency? सर ये इससे और बेसिक हो नहीं सकता, ये और दूसरी Very good. फ्रीक्वेंसी This जो होंगे वो frequency f basically defines the period of the composite signal. अगर आप इस f को देख लें, इस रेड लाइन को, this period and this period is same है कि नहीं है? है सर। ठीक है। So this period, basically this fundamental frequency defines the period of the signal आप लोगों के पास, ठीक है। So let me draw again here. So we have a fundamental frequency here, like this, ठीक है। Then we have another small like this, ठीक है, और फिर इससे भी ज्यादा मैंने स्मॉल कर दिए। So when I add all of these three frequencies, I will get like this 1 2, ठीक है, again 1 2 1 2 1 2 and so on आपके पास, ठीक है। So you can see that the period or the frequency of the period of this signal is same as the period of fundamental. Yes sir. Clear? So that is why this frequency is known as fundamental frequency, ठीक है। अब इसको मैंने 3 उसमें डिवाइड कर दिया, ठीक है। So this, एक मिनट वेट करें। ठीक है। सो आई हैव एड दीज 3 सिग्नल्स, सो आई हैव दिस रिजल्ट आपके पास। और जब आप इस रिजल्ट पे फोरियर एनालिसिस अप्लाई करेंगे तो यू विल गेट व्हाट, दीज 3 सिग्नल्स। क्लियर? यस सर। ओके। So now this is a time domain plot of these 3 signals आपके पास, but what if I draw these 3 signals on this frequency domain plot? So I will have this first fundamental frequency, then I will have this 3f, and then this I will have 9f आपके पास। क्लियर? तो आप देख रहे हैं कि इस सिग्नल को अगर मैं रिप्रेजेंट करना चाहता हूं ऑन अ स्पेक्ट्रम, तो दिस इज माय स्पेक्ट्रम आपके पास। देयर आर 3 different signals contained in this spectrum आपके पास। and how this spectrum is formed by using Fourier analysis। आप Fourier analysis करेंगे, आपके पास 3 frequencies आएंगी and then उसके amplitudes आएंगे and then you will plot it on this spectrum आप लोगों के पास। आप MATLAB पे भी ये लोग कर सकते हैं, ठीक है। हम लोग MATLAB पे भी आप लोगों ने किया होगा सर्किट 2 में, ठीक है, ठीक है। So this is basically the spectrum। Now this f is known as fundamental frequency, and then this 3f and is 9f is known as what? Harmonics. They are known as harmonics. Harmonics are multiple of fundamental frequency. Clear? Yes sir. Yes sir. This is a non-periodic composite signals, and when I apply a Fourier series on this नॉन पीरियोडिक, इसका डिकम्पोजिशन में करूं तो आपके पास क्या आएगा, इसका जो स्पेक्ट्रम होगा दैट विल बी कंटिन्यूअस। आप देख रहे हैं इसका डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम नहीं है आपके पास। यस 0 to 4, ठीक है। सो योर वॉइस इज अ नॉन पीरियोडिक कंपोजिट सिग्नल। जब आप उसका स्पेक्ट्रम ड्रा करेंगे तो अच्छा, तो हम उसको फोरियर एनालिसिस करेंगे या फोरियर ट्रांसफॉर्म करेंगे? फोरियर ट्रांसफॉर्म। ट्रांसफॉर्म इज फॉर नॉन पीरियोडिक आपके पास। क्लियर? करेंगे।
सर तो वो डिजिटल में कन्वर्ट करके जाता कैसे है सर? खुदाया, वॉइस आप कह रहे हैं? यस सर। माइक्रोफोन सर क्या वॉइस करता तो वो कन्वर्ट करते हैं, सही है सैम्पलिंग सर। करके। माइक्रोफोन इसको एनालॉग उसमें कन्वर्ट नहीं करता सिग्नल में, सिंपल ये एनालॉग सर इलेक्ट्रिकल। फिर उस इलेक्ट्रिकल सिग्नल को हम सैंपल करते हैं, ठीक है, वो हम पढ़ेंगे सैम्पलिंग। ये सर वो क्लियर? पढ़ा है सर, समझ आ गया। ये सर ठीक है। सैम्पलिंग कहाँ पे पढ़ा है आप लोगों ने? सर वो एक सब्जेक्ट में पढ़ाया था सर, वो उनका जो है सर एक एक फीट सर ठीक है, बट सर बट बट इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ा है, कहाँ पे पढ़ा है? इलेक्ट्रॉनिक्स 2 में। इलेक्ट्रॉनिक्स 2 में, यस वहाँ पे है, लेकिन वहाँ सिर्फ एक उसमें एक चीज़ है, पीसीएम आप लोगों ने नहीं पढ़ा, पल्स कोड मॉड्यूलेशन। यस सर वो नहीं पढ़ा, वो आप पढ़ाएंगे। ठीक है, तो सैम्पलिंग से सिर्फ हम उसकी वैल्यूज फाइंड आउट करते हैं, हाउ टू कन्वर्ट दैट वैल्यूज इन दी डिजिटल डेटा, दैट इज द प्रोसेस पीसीएम। तो पीसीएम इज वन कंप्लीट प्रोसेस आपके पास, ठीक है, तो वो हम पढ़ेंगे। ओके ओके, सो नाउ बैंडविड्थ। So bandwidth of a composite signal is the difference between the highest and the lowest frequency contained in that signal आपके पास। So when you have a composite signal, so what is the bandwidth? Bandwidth is basically the difference between the lowest and the highest frequency आप लोगों के पास, ठीक है। So this is a periodic signal. It is having the lowest frequency of 1000 and a higher frequency of 5000. So what is the bandwidth? It is 400 hertz, 4000 hertz आपके पास, और 4 kilohertz आपके पास, ठीक है। So bandwidth is the range of frequency contained in the signal आप लोगों के पास। Clear? यस सर। Similar is the case with non-periodic signal. माइनस लोअर जी, हायर फ्रीक्वेंसी में माइनस लोअर फ्रीक्वेंसी। minus lower frequency, very good, ठीक है। Okay, so if a periodic signal is decomposed into 5 sine waves with a frequency of 100, 300, 500, 700 and 900 hertz, what is its bandwidth आपके पास? तो बहुत से लोग जल्दी से इसको 900 कह देते हैं। नो, द बैंडविड्थ इज 900 माइनस 800 800 आपके पास, ठीक है। So that Yes, is sir. your bandwidth, or all of the frequencies are having the same amplitude. So this is again a spectrum आपके पास, ठीक है। Spectrum is frequency domain plot आपके पास। A periodic signal has a bandwidth of 20 hertz. The highest frequency is 60 hertz. What is the lowest frequency? So very easy. आपको bandwidth भी पता है और आपको higher भी पता है। तो lowest find Yes. करने के लिए क्या है? 60 minus 20, 40 आपके पास आ गया। Clear? यस सर। So your frequency is 40 to up to 60 आपके पास। A non-periodic composite signal has a bandwidth of 200. A non-periodic सिटी बचे सवा, हाँ। ओके, सो नॉन पीरियोडिक है हमारे पास, ठीक है, तो उसका भी यही फार्मूला है और कुछ नहीं है, ठीक है। आपके पास लोवेस्ट गिवन है, सो 40 है और हाईएस्ट 240 है। तो बैंडविड्थ किस तरह फाइंड करना है? 240 से 40 फाइंड आउट करना है, लेकिन इसका स्पेक्ट्रम आप लोग इस तरह ड्रा करेंगे। क्लियर? यस सर। So an example of non-periodic composite signal is the signal propagated by an AM radio station. तो जो आप AM रेडियो वो करते हैं उसमें आपके पास पीरियोडिक नॉन पीरियोडिक सिग्नल है वो आपके पास, जाहिर बात है, फिर आप ट्यून करते हैं स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी में, ठीक है। सो FM भी आपके पास नॉन पीरियोडिक कंपोजिट सिग्नल है। क्लियर? पूरे का पूरा सिग्नल आप रिसीव करते हैं, फिर उसमें आप सेलेक्टिव फ्रीक्वेंसी ट्यून करते हैं। क्लियर?
यस सर। टीवी में भी आपके पास नॉन पीरियोडिक आपके पास। सो अनदर इज डिजिटल सिग्नल आपके पास। क्लियर? so that we will study in the next class। हम next class में फिर डिजिटल सिग्नल से स्टार्ट लेंगे, ठीक है? बट जस्ट बिफोर दैट सिंपल डेमो हमारे पास डिजिटल सिग्नल बनता किस तरह, होता क्या है, ठीक है? So let's say I have an analog signal of a fundamental frequency of like this thing, ठीक है? और उसमें मैं पहले एक फ्रीक्वेंसी ऐड करूं, ठीक है, लाइक दिस थिंग। सो लेट्स से मैं सिर्फ एक फ्रीक्वेंसी उसमें ऐड कर रहा हूं, तो आपके पास जो सिग्नल बनेगा वो इस तरह बनेगा, ठीक है? मैं दो कुछ और भी हायर फ्रीक्वेंसी ऐड कर रहा हूं, तो आपके पास सिग्नल जो है वो इस तरह होगा, ठीक है? यस सर। ठीक है, फिर मैं उसमें और भी फ्रीक्वेंसी जरा हायर ऐड कर रहा हूं, तो आपके पास इस तरह होगा। तो ये आपके पास क्या शो कर रहा है? डिजिटल की तरफ जा रहा है आहिस्ता आहिस्ता। डिजिटल की तरफ जा रहा है, बट डिजिटल इज लाइक दिस, कंप्लीट फ्लैट आपके पास। इसका क्या मतलब है? इसमें बहुत सारे फ्रीक्वेंसी है, मतलब Digital signal is a composite signals containing frequency from 0 to infinite. Yes. So the bandwidth of digital signal is infinite sir. Infinite, which is practically impossible आपके पास। Clear? तो याद रखें कि practically we can't have a perfect digital signal because this thing, अच्छा, another way to see is there is a horizontal lines in this digital signal and also vertical line. So horizontal line represent zero frequency and vertical line represent what? Frequency. Finite frequency. So it is range of frequency from 0 to infinite आपके पास, ठीक है? But in real life this thing is not possible, this thing. Yes sir. इधर से इधर तक हमेशा कुछ ना कुछ टाइम आपके पास स्लोप होता है सर। यस सर। स्लोप होता है आपके पास, ठीक है? सो हम कह सकते हैं कि a digital signal in practical have a very very large bandwidth आप लोग के पास। क्लियर? सर अगर हम स्पीड बढ़ाए तो ये सर पॉसिबल है, अगर स्पीड हमारा स्पीड ऑफ लाइट से हो जाए तो पर सर वर्टिकल पॉसिबल है, टाइम रुक वर्टिकल पॉसिबल। यस सर। हाँ, दैट इज पॉसिबल इन दैट सेंस, बट सिंस वो भी आपके पास डायरेक्ट डिसकंटिन्यूटी नहीं होती है आपके पास। बट हम यहाँ पे हम जब मीडियम में ट्रांसमिट करते हैं डिजिटल सिग्नल्स को, ठीक है, तो वी आर एज्यूमिंग दैट डिजिटल सिग्नल हैज अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज आपके पास, ठीक है? और जब हम डिजिटल सिग्नल प्रोड्यूस पे करते हैं तो हम उसमें सारी फ्रीक्वेंसीज आखिर तक इस्तेमाल नहीं करते बिकॉज दे आर रिडंडेंट। अब आप आगे जाके देखेंगे कि क्यों रिडंडेंट है। उसमें अगर आप रिड्यूस भी कर लें फ्रीक्वेंसीज को तो इंफॉर्मेशन लॉस नहीं होती है आपके पास। क्लियर? आप ऑसिलोस्कोप पे अगर डिजिटल सिग्नल को देखना चाहें तो आपके पास वो बिल्कुल एक परफेक्ट डिजिटल सिग्नल नजर आ रहा है, नहीं नजर आएगा, लेकिन वो होगा नहीं आपके पास। फिर उसमें जो टाइम खामखा लगेगा फॉर कंटिन्यूटी आपके पास। क्लियर? यस सर। So we will study that in upcoming class में हम लेक्चर नंबर